Rushti, I'm audible now. Yes, ma'am, you are audible. The ever evolving world of science. Rushti, what all have you understood yesterday? क्या क्या समझ आया था? Ma'am, in this chapter, you taught us about what is science, and then about physical change, not physical change, about acidic and basic substances, then about electricity, like circuit diagrams, and then you have taught us about metal and non-metal rusting of iron. Testing of And fire, metals and non-metals. Yes, I have taught. yes, Conductors and non-conductors, insulators. Okay. Today we are going to talk about the life in motion, or what are some basic ways or the basic cycle which goes through our life, and that happens with every living organism, right? Every living organism, life in motion जिसे कहते हैं. Every living thing grows, reproduce, transpire, respirate. ये सारी चीजें हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, राइट? हर लिविंग yes. बीइंग में होती है. तो ऑल लिविंग बीइंग्स, सॉरी, all living beings. Grow. Beta, I'm not audible to you. Ma'am, you are audible. Now you are audible. Sometime your voice is becoming low. Okay, now am I audible? Yes, ma'am. All living beings carry out vital life processes. Carry out vital life processes like what are some basic life process that we all living beings follow? Ma'am, growth, Yes, growth. then reproduction, respiration, Very good. then Growth, reproduce, and respiration, respiration. Okay. then The blood flow in our body. The blood flow in our body क्या होता है? सर्क्यूलेशन. हमारी बॉडी में हर तरफ, चारों तरफ, मतलब पूरी बॉडी में. I am talking about our body, but same happens with the bodies of animals or plants. ब्लड सर्कुलेशन होता है, या उसमें वाटर सर्कुलेशन होता है. सो सर्कुलेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस दैट इज कैरिड थ्रू all living beings. And then all the waste materials comes out of our body, right? We excrete. excre- हम खा excretion. Yes, excretion. हम खाना खाते हैं. Good evening, Sudiksha. 9 minutes late, 10 minutes late to the class. Switch on your camera and mic.
circulation and excretion. What all every food we eat, हमारी बॉडी अच्छा अच्छा खाना तो अब्सॉर्ब कर लेती है, बट इट, एक्सक्रीशन की स्पेलिंग गलत है आई थिंक, नो इट इज करेक्ट, या। सो हमारी बॉडी व्हेन वी ईट फूड, हमारी बॉडी जो उस खाने में से जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, आवर बॉडी अब्सॉर्ब्स एवरीथिंग, राइट। और जो लेफ्ट ओवर वेस्ट पार्ट हो जाता है, दैट कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी एंड दैट इज हाउ वी एक्सक्रीट, उसे एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस बोलते हैं। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, दैट हैपेंस विथ एनिमल्स ऑल्सो। एंड वाटर लॉस होता है हमारे प्लांट्स में भी, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। So all living beings carry out these life processes. All animals grow, right? All animals reproduce. All plants reproduce. All plants grow. All plants and animals respire. All the plants, animals and humans circulate. Circulate in the sense body में circulation होता है, and same goes with the Yes. excretion also. So clear? Yes, ma'am. Okay, so Diksha, good evening. Good evening, ma'am. Okay, so I am talking about that all living beings carry out some vital life, vital यानी important, vital का मतलब होता है important, Okay. some important life processes like growth, reproduction, transpiration, excretion, circulation. ठीक है। एंड बेसिकली ये चैप्टर जो है आपका, दिस इज अ समरी, ये एक समरी है कि आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हो। यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग इन डिटेल। सो इसीलिए ये चैप्टर सिर्फ आपकी एक समरी है, हर छोटी छोटी चीज को बता दिया गया है कि दिस इज ऑल व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी henceforth in the book. Okay? Okay, ma'am. So Diksha, are you clear with this thing? Ma'am, can I explain again? बेटा, all living beings, all living beings में कौन आते हैं? We humans, animals and plants. And what else comes in the category of living beings? Does cars and does this blackboard comes in the category of living being? No, ma'am. No, No, ma'am. right? And yeah, one thing more, breathing. We all breathe, right? Yes. So that is also a vital life process. So जितने भी living beings होते हैं, इस the living beings or the living organisms out here in the world, उनका जो लाइफ प्रोसेस होता है, दे कैरी आउट द सेम लाइफ प्रोसेस। सारे लिविंग बींग्स, बी इट अस, बी इट एनिमल्स, बी इट प्लांट्स, सब ग्रो करते हैं ना। सो दीक्षा, प्लांट्स ग्रो? Yes. So Diksha, does plants grow? Yes, ma'am. Does plants reproduce? Yes, ma'am. Yeah, we also grow, like we were born babies, we were born like babies, infants, हम लोग इतने छोटे छोटे babies, then we grow up into these adults and big human beings. So we also grow, we reproduce, like animals also reproduce from 1 to 2 to 3 to 4. So that is how हमारी population बढ़ती है. So सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग ओनली। सो वो ब्रीदिंग का ही प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग इन एंड आउट, दैट इज रेस्पिरेशन, सॉरी, रेस्पिरेशन इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ओके, Okay, ma'am. and then circulation and then excretion. Excretion क्या होता है? When we eat food, हम खाना खाते हैं, या even the animals eat food, right? Animals. So when we eat food, all the good nutrients, जितना भी अच्छा nutrients होता है हमारे खाने में, जितना भी अच्छा अच्छा वाला part होता है, water होता है, salt होता है, that is absorbed by our body. Our body absorb all of that good वाला part, और जितना भी फालतू waste part होता है जो हमारी body को जरूरत नहीं होता, that comes out of our body, right? Okay, ma'am. And Yes, that ma'am. process is excretion. So सारी living beings ये वाली processes follow करते हैं. Clear to both of you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Should we move forward? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, moving on, we have the concept of
time. Time. टाइम से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम? Ma'am, like using clocks. क्लॉक्स, ओके, बट टाइम आप ये कह सकते हो ना, कंटिन्यूअसली इवेंट्स बदलते हैं। दिन होते, सुबह होती है, दिन होता है, शाम होता है और रात हो जाती है। सो दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स। यानी सुबह हुई, दिन हुआ, शाम हुई एंड देन रात हो गया। टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। डज टाइम, विल टाइम एवर स्टॉप फॉर मी? मैं बोलूं कि टाइम रुक जाओ, विल टाइम स्टॉप फॉर मी? No, No. No, ma'am. right? Time is a continuous movement. It continuously moves and it does not stop for anyone in the world. So, continuous progression of events. Yes, beta. Are you saying anything? No, ma'am. Okay. So, time is the continuous progression of events. Events. Like मैंने क्लास 8 की क्लास ली, 4 to 5, देन मैं क्लास 7 की क्लास लूंगी। सो वो कंटिन्यूअसली टाइम इज मूविंग, कंटिन्यूअसली द चेंज इन इवेंट्स इज हैपनिंग। आर यू बोथ अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. एंड Yes, nowadays, ma'am. okay, nowadays we have clocks and watches, so हम time बता देते हैं that it is 4:27 right now, sorry 5:27 right now, 5:17, sorry, it is 5:17 right now, so we can tell time कि अब इतना हो रहा है, अब इतने बज रहे हैं, अब इतने बज रहे हैं। But in ancient time or in ancient civilization, they do not have, they did not had watches or clocks. So what did they do? They noticed the natural movement of the sun और उस हिसाब से वो टाइम को डिटरमाइन करते थे। जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती थी वैसे वैसे उनका टाइम बढ़ता था। So that is how they used to determine the time. They measured the time by the movement of sun, The by sun. how shadows are formed. ओके, शैडो का भी एक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपके आगे के चैप्टर्स में होगा, बट मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। इज देयर एनी चैप्टर लाइक लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, कुछ ऐसा कुछ चैप्टर है? Yes, ma'am. No, Chapter ma'am. 11. Yes, ma'am. ओके, when you walk in the sun in the afternoon, do you see a shadow being formed? अपनी shadow दिखती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो what happens, shadow कैसे form होती है कि
if supposingly I am standing here and sun यहां से है, sun यहां से आ रहा है, दिस इज सन, सन रेज आ रही है, लाइट आ रही है। अच्छा, टेल मी, इफ देयर इज नो लाइट, रात के टाइम कभी शैडो देखी है बनते हुई? नो मैम। नो, सन के हेल्प से रात के टाइम शैडो कभी नहीं बनेगी। बट या अगर टॉर्च है या कोई लाइट है, स्ट्रीट लाइट्स होती है हमारे यहाँ, एंड व्हेन वी वॉक ऑन द रोड, तो हम उस स्ट्रीट लाइट के सामने जब आते हैं, उसके ऑब्स्ट्रक्शन में जब होते हैं, उसके बीच में जब आते हैं, तब हमारी शैडोज रात में बनती हैं, यस नॉट मैम। विद द हेल्प ऑफ द सन। सो सी, दिस इज एन आफ्टरनून एंड मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो आई एम ब्लॉकिंग द सन रेज। मैं यहां तक तो सन की रेज आ रही है, बट फिर मेरे पीछे नहीं जा पा रही है, तो माई शैडो, माई डार्क कलर शैडो विल बी फॉर्म्ड हियर बिकॉज आई एम ब्लॉकिंग द रेज ऑफ द सन। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ सन होता है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर शैडोज बनती हैं, दैट वी विल स्टडी अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर्स और द प्रीसीडिंग सक्सीडिंग चैप्टर्स। सो शैडो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब हम लाइट के पाथ में आ जाते हैं, जब हम लाइट के पाथ में खड़े, अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ और वहां से सन आ रहा है, तो मेरी शैडो सामने बनेगी बिकॉज आई एम ब्लॉकिंग द वे ऑफ द लाइट। क्लियर? Yes. तो इसी शैडो यस की मैम। हेल्प से और इसी शैडो के उससे लोग इन एंशिएंट टाइम दे यूज टू डिटरमाइन और मेजर टाइम। अगर शैडो यहाँ पर है तो कुछ अलग साइज की शैडो, अगर सन एकदम ऑन द टॉप है, दिन के टाइम पे एकदम सर सर पे होता है ना, एकदम तेज, Yes. तो शैडो का साइज अलग होता है, शैडो अलग जगह बनती है। इन द मॉर्निंग द साइज ऑफ द शैडो इज डिफरेंट, एंड शाम होते होते साइज ऑफ द शैडो इज डिफरेंट। तो उस तरह से उन्होंने टाइम डिटरमाइन कर लिया था। तो टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes. यस मैम। ओके, वेरी गुड। देन ये इतना प्रैक्टिकल नहीं था, जिस तरह से वो लोग टाइम मेजर करते थे सन के मूवमेंट से, वो इतना प्रैक्टिकल नहीं था। तो दे डेवलप्ड सम क्लॉक्स, वो धीरे धीरे इन्वेंट करते गए, जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए, चीजें इन्वेंट होती गई, वैसे वैसे टाइम के लिए भी, टाइम को मेजर करने के लिए भी पीपल इन्वेंटेड सन डायल। आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑफ सन डायल, वाटर क्लॉक। Ma'am, sundial means that when we keep the bottle like that upside down, the sand comes down. नो नो, दैट इज सैंड क्लॉक, वो तो सैंड क्लॉक होती है, वो अलग होती है। टाइम उसको बोलते हैं ना, स्टॉप वॉच नहीं है तो फिर बोलते हैं वो टाइम समथिंग, स्टॉप वॉच ही कहते हैं शायद, या सो वो अलग वाली वॉच होती है बेटा, सैंड वॉच ही होती है वो। दिस इज सन डायल। देन वाटर क्लॉक, और एक मैकेनिकल क्लॉक भी आई थी। तो पीपल इन्वेंटेड दीज क्लॉक्स टू डिटरमाइन एंड मेजर टाइम एक्यूरेटली, और फिर धीरे धीरे हमारी एकदम प्रिसाइज। यस बेटा, सृष्टि यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। सृष्टि, सुदीक्षा, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही बेटा। यस मैम। ओके, सुदीक्षा, नाउ आई कैन। That यस सृष्टि, व्हाट आर यू सेइंग? in that's the clock made of sand. बेटा, योर नेटवर्क इज नॉट, check your internet connection. Okay, so I will show you
sundial. See, this is how sundial. Yes, Rushti, what are you saying now? Say. So, Diksha, can you hear Srishti? What, ma'am? बेटा आपको सृष्टि की आवाज आ रही है? No, ma'am. So it is not, she is not audible only. So look here, this is a sundial. ये sundial होता है. This is a sundial. इसके मदद से लोग टाइम देखते थे. Yes, ma'am, I know. Yeah, this is a sundial. And then एक water clock आती थी. उस water clock को also I'll show you a water clock also. मैम एक डायरेक्शन क्लॉक भी होती है. हाँ, डायरेक्शन क्लॉक वहां देखा है? हैव यू एवर बीन टू अ क्लॉक टावर जहां पे लोग घंटा घर नहीं बोलते? वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही टाइम बताती है एंड इट टेल्स द एक्यूरेट टाइम. लखनऊ में इट इज क्लॉक टावर. वो एक्यूरेट Yes, टाइम ma'am. बताती. यस बेटा. I know. या ऑल दोस वॉचेस आर इन्वेंटेड. सी दिस इज अ वाटर क्लॉक. मैम ये वाली वाटर क्लॉक कहाँ कहाँ होती है? बेटा वाटर क्लॉक्स एंड ऑल नाउ तो नाउअडेज तो वी डोंट सी इट ऑफ कहीं पर हमको दिखती नहीं है बिकॉज इट वाज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स. बहुत एंशिएंट टाइम पे. नाउ तो वी हैव सच एडवांस्ड. सृष्टि के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. ओके. सो वी हैव सम सच एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कि अब हमें इतने मैकेनिकल और इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है. सो नाउअडेज आई डोंट थिंक सो वी सी इट एनीवेयर. कुछ म्यूजियम्स में होगी, मे बी सम म्यूजियम्स विल हैव वाटर क्लॉक. But people back in the days when they didn't have the access for the normal or the analog watches, और ये वाली watches का उनके पास. बेटा सृष्टि आप कितने फोन से ज्वाइन कर रहे हो? You are joined from 3 devices. मैम ये जो आप वाटर क्लॉक कह रहे हो वो इल्यूजन वाले मैजिकल ग्राउंड पार्क में भी होते हैं ऐसे. या फिर साइंटिफिक पार्क्स में भी ये वाले वाटर क्लॉक दिखाते हैं. टू साइंटिफिक म्यूजियम्स. हैव यू एवर बीन टू साइंटिफिक म्यूजियम्स? वहां पर ये वाटर क्लॉक्स दिखने को मिलती हैं. और फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और हमारी मैकेनिकल क्लॉक आई विच इज वेरी सिमिलर टू द क्लॉक्स और एनालॉग वॉचेस वी यूज नाउ दीज डेज. ओके, नाउ मूविंग ऑन. अभी हम शैडोज और टाइम की बात कर रहे हैं. सो वी विल टॉक अबाउट द शैडोज एंड द सिर्फ हमारी ही शैडो नहीं होती है. सिर्फ हम अपनी शैडो या ह्यूमन बीइंग्स या वर्ल्डली क्रिएचर्स की शैडो नहीं होती. The shadows of in the solar system there is a shadow. अर्थ की शैडो बनती है, सन एंड मून की शैडो बनती है जिस वजह से हमें इक्लिप्सेस देखने को मिलते हैं. हैव यू एवर हर्ड ऑफ लूनर एंड सोलर इक्लिप्स? नो मैम. यू हैवंट हर्ड ऑफ लूनर एंड सोलर इक्लिप्स? बेटा आपके बुक में आगे के चैप्टर्स में है. अभी मैं आपको सिर्फ वो बताती हूँ. See. Ma'am, can you hear me? Yes बेटा, अब आपकी आवाज आ रही है बट नॉट वेरी क्लियरली. मैम इस बल्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बेटा. मैम बेटा थोड़ा पीछे जाकर शो मी.
मैम ये वाली बल्ब को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 minute. I'm not able to see that properly, child. मैम मैम 1 मिनट। मैम दिस बल्ब। This is an incandescent lamp. इसको बोलते हैं incandescent lamp, यानी लाइट बल्ब ही नॉर्मली होता है। इसमें ये फिलामेंट है, लुक हियर, देखो। मैम ये बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, जो टॉर्च में बल्ब्स देखे हैं, टॉर्च में ऐसे छोटे बल्ब्स होते हैं, लुक हियर। यस ये टॉर्चेस होती हैं ऐसे करके, राइट? मैम दिस लाइक दिस। यस एलईडी लैम्प। और इसमें छोटे बल्ब होते हैं, यूज्ड इन आवर टॉर्चेस। इनकैंडेसेंट लैम्प इसको बोलते हैं, इनकैंडेसेंट लैम्प। मैम दिस वन। वेट बेटा वेट, आई एम कमिंग एंड देन सी। दिस वन। या अब तो लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी वाले लैम्प, अब एलईडी वाली टॉर्चेस आने लगी हैं। बट अभी भी हम लोगों का कहीं कहीं पर वी हैव इनकैंडेसेंट लैम्प वाली एलईडी, सॉरी टॉर्चेस आल्सो। कुछ एलईडी वाली मैम होती है और कुछ ऐसे होती हैं इनकैंडेसेंट लैम्प वाली। ओके ओके मैम। मैम यस बेटा। मैम आई वाज टेलिंग यू दिस वन क्लॉक दिस इज एन आर ग्लास, हाँ आर ग्लास इसका नाम है। मेरे आई कुड नॉट रिमेम्बर द नेम। एंड मैम वी हैव अ कैंडल क्लॉक आल्सो हियर। सी आर ग्लास कैसे बनता है? समथिंग लाइक दिस। या व्हाट हैपेंस 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स या 30 मिनट्स, ऐसे ऐसे कर करके डिफरेंट डिफरेंट आर ग्लासेस होते हैं। 1 मिनट, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट मिनट्स के आर ग्लासेस होते हैं। लाइक ये सैंड जो होती है, दिस ट्रांसफर फ्रॉम दिस सेक्शन टू दिस सेक्शन इन 10 मिनट्स। अगर ये 10 मिनट्स वाली आर ग्लास है तो वो 10 मिनट्स में ट्रांसफर होता है, और फिर 15 मिनट्स है तो 15 मिनट्स में, देन 5 मिनट्स। तो इस तरह से वी कैन मेजर टाइम। ओके, एंड देन कैंडल लैम्प्स यू हैव, राइट? सॉरी, कैंडल And ma'am, what is the meaning of candle clock? candle clock. Okay, I'm explaining. See, मैम this is a timer clock? this is a stopwatch. 1 minute. Yeah, this is a stopwatch. Have you ever participated in a race or any competition? Yes उसमें मैम। Yes, टाइम ma'am. जैसे हम नोट करते हैं, वो स्टॉप वॉच के थ्रू ही वो करते हैं। एंड व्हेन यू ऑल विल ग्रो अप एंड गो इनटू हायर क्लासेस, आपको ये स्टॉप वॉच बहुत यूज करने को मिलेगी फिजिक्स लैब्स में। So that is a stopwatch. See, candle lamps कैसे होते हैं? Srishti or Sudiksha, someone show me a picture of a candle lamp. Here it is, ma'am. What मैम? Ma'am, it is here. बेटा सृष्टि, आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है। सुदीक्षा, यू शो मी अ पिक्चर ऑफ मैम what? कैंडल लैम्प की बेटा, कैंडल Candle lamp. कैंडल क्लॉक की। Wait. मैम this one. ओके, मैम what is this?
मैम व्हाट इज दिस? 1 मिनट बेटा, पहले कैंडल क्लॉक समझा दूं। ओके मैम। ओके, ऐसे करके कुछ तरह से होती थी कैंडल क्लॉक, और यहाँ पे ऐसे से टाइमर होता था। एंड व्हेन द होल कैंडल बर्न्स, तो फिर एक अलार्म, यहाँ पे एक अलार्म टाइप ऑफ थिंग था जो बजता था, विच इंडिकेट कि इतने मिनट या इतने आवर या इतने सेकेंड्स हो गए। व्हेन द होल कैंडल बर्न्ड, तो यहाँ पर वो होता था। और एक और कॉन्सेप्ट था, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देयर वाज अ यस मैम। कैंडल और यहाँ पे पिन्स लगा दी जाती थी, लाइक अगर यस मैम आई नो। या Yes, यहाँ ma'am. पे ऐसे पिन्स लगा दी जाती थी, लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ पिन, ठीक है। अब कैंडल यहाँ तक बर्न हो गई तो दिस पिन विल वो फॉल, कैंडल गिर जाती थी। दिस पिन विल fall and make a noise. So Diksha, pay attention here. So यस this मैम। nail will fall and this pin will fall and make a noise which indicates कि हाँ 5 minutes हो गए, चलो 5 minutes हो गए। Then the next pin will fall which indicates कि 10 minutes हो गए, next minute. So इस तरह से टाइम नोट करते थे पहले के टाइम पे लोग। यस मैम। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। Is candle clock clear? Yes, ma'am. मैम। Okay, now show me the picture which you were showing, Sudiksha. यस मैम वन। 1 minute मैम। यस मैम दिस वन। Okay, okay, beta, I have seen. Okay. तो इससे क्या होता था, दिस इज अ फ्लोटिंग बोल टाइप। मैम here is it is written water flowing out tape वाटर type फ्लोइंग आउट टाइप वाला बेटा वो दूसरा था, A है। दिस मैम वन। वो A वाला है, B हाँ वाला फ्लोटिंग बोल टाइप है वो। हाँ, दिस इज अ वाटर फ्लोइंग आउट टाइप, कुछ ऐसा डायग्राम है ना। यस मैम दिस हाँ, इज A1। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे दे फिल वाटर इन दिस टैंक, और फिर वो इस टैंक से इस टैंक में ट्रांसफर होता था, फिर इससे फ्लो आउट होता था, और जितने टाइम में वो बाहर फ्लो आउट होता था वो कैलकुलेट करते थे, और उस हिसाब से दे यूज टू कैलकुलेट टाइम कि कितने टाइम में ये वाटर फ्लो आउट हुआ है, इसमें भरा एंड देन इससे आया एंड देन फ्लो आउट हुआ। तो उस टाइम को वो कैलकुलेट करके उस हिसाब से टाइम को मेजर करते थे। And same with the water floating bowl also, they used to they used to do the same thing to see, they used to do the same thing with water flowing bowl type also, they used to see कि इसको empty होने में कितना time लगता है, and that is how they used to measure. यस मैम। Now talking about the eclipses और the movement of earth, sun और shadow, उसकी कैसे form होती है, let's talk about that.
आई विल टेक आउट अ पिक्चर एंड शो यू कि आपको इक्लिप्स समझ आ जाए. See, like I told you कि हमारी शैडो कैसे बनती थी. when we blocked the light of the sun, हमारी शैडो बन जाती थी. Now what happened? मैम विद द हेल्प ऑफ सन. Yeah, with the help of a sun, right? हमारी शैडोज बनती थी. Now अब सन के साथ मून और अर्थ की जो शैडोज बनती हैं वो कहते हैं हम इक्लिप्सिस. इक्लिप्सिस क्या बोलते हैं? एक्लिप्सेस. यस. आई एम फाइंडिंग अ फोटो टू शो यू बोथ जिससे आपको इक्लिप्सिस क्लियर हो जाए. दो टाइप के इक्लिप्स होते हैं, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स. ठीक है. दो टाइप के इक्लिप्सेस होते हैं, लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स. लूनर इक्लिप्स में क्या होता है बेटा? द earth moves directly between the sun and the moon. Consider this as the sun and this is the moon. And the earth moves here. earth आपको पता है ना, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन करता है, उसके बारे में भी आई विल टॉक अबाउट. तो यस अर्थ मैम. यहाँ पर आ जाता है. ठीक है. दिस इज अर्थ. मैम वन डाउट. यस बेटा. मैम अर्थ प्रॉपर एक सर्कल शेप में होती है या लाइक अ ओवल शेप में थोड़ी सी? अर्थ, when you will go into higher classes, अर्थ spherical shaped में होती है, पर उसका जो टॉप एंड बॉटम पार्ट होता है वो फ्लैट होता है. अर्थ इज फ्लैट. अभी तो आपको ऐसा कुछ अर्थ होता है. It is a spherical shaped but with flat bottom and flat topped. Okay? When you ओके will मैम. go into higher classes, आप इसके बारे में पढ़ोगे. बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि कोई यहाँ से चला और फिर वापस वो यहीं आ गया, और वो फ्लैट मतलब उसका मतलब अर्थ इज अ फ्लैट सरफेस. तो वो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ोगे. नाउ व्हाट विल हैपन? अब बताओ क्या होगा इसमें. क्या होगा? अर्थ केम इन बिटवीन द सन एंड द मून. नाउ व्हाट विल हैपन? लाइक आई स्टूड बिटवीन, आई केम इन द वे ऑफ सन. मैं सन के वे में आ गई थी तो मेरी शैडो इधर बनी. अब क्या होगा? अर्थ आ गया है मून के उस पे. मैम where अर्थ there के is फ्रंट sun. साइड पे शैडो आएगी. Yes, there will be a shadow of earth, like ऐसे 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 ऐसे, और जिसको हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स. लूनर इक्लिप्स हम लोग कहते हैं. तो जब अर्थ रेवोल्यूशन करके पूरा यहाँ पर आ जाता है सन और मून के बीच में, तो वो अपनी शैडो मून पे कास्ट करता है. एंड दैट इज व्हाट वी नोन एज लूनर इक्लिप्स. व्हाट वी नोन एज लूनर इक्लिप्स. वेट, मैं फोटो दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा. जी मैम. वो सुना है कभी चंद्र ग्रहण? लूनर इक्लिप्स को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं चंद्र ग्रहण. ग्रहण. यस मैम. जो चांद पे ग्रहण लग जाता है, दैट इज ओनली व्हाट लूनर इक्लिप्स इज.
सी मून कुछ इस तरह से दिखने लगता है. दिस इज व्हाट लूनर इक्लिप्स इज. Half of the moon has turned black, right? That is the shadow Yes, of the ma'am. earth. That is the shadow of the earth. तो वो lunar eclipse होता है. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now talking about the solar eclipse. Solar eclipse में उल्टा हो जाता है. Moon comes in between the earth and the Sun. क्या हो जाता है? The moon comes between the earth and the sun. Sun. This is the earth and this is the moon. And this moon comes between this. So अब क्या होगा? Tell me what will happen now. Tell me what will happen now. Ma'am, I can't understand. Lunar eclipse समझ आया था बेटा? Have you Yes, ma'am. understood lunar eclipse? Yes, ma'am, a bit. लूनर इक्लिप्स चलो मैं फिर से समझा देती हूँ. जब अर्थ मून और सन के बीच में आ जाता है तो जो अर्थ की शैडो होती है वो मून पे फॉल होती है. सो इसीलिए वी सी हाफ ऑफ द मून ब्लैक. वो एकदम ब्लैकिश रेडिश हो जाता है. जैसे हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण. जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है दैट इज द डे ऑफ लूनर इक्लिप्स. ठीक है. जब अर्थ रेवोल्यूशन करता है ऐसे ऐसे घूमता है. ठीक है. ऐसे ऐसे घूमता है और जब वो सन और मून के बीच में आता है तो क्या होता है कि मून पे शैडो बन जाती है अर्थ की. वो लाइट ब्लॉक करता है और शैडो बन जाती है अर्थ की. क्लियर सुदीक्षा? तो वो शैडो Yes, हमें ma'am. दिखती है ब्लैकिश रेडिश कलर में और उसे हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण. अब यहाँ पर सोलर इक्लिप्स हो रहा है. ये है सोलर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन. मून पूरी लाइट ब्लॉक कर देता है. तो मून हम लोगों को कैसा दिखेगा? द मून विल अपीयर. ये अर्थ है. यहां से हमें मून देखना है. व्हाट हैपेंड? यहां से लाइट आई बट लाइट कुड नॉट पास फ्रॉम हियर. यहां से तो पास ही नहीं हो पाई. पूरा डार्क एरिया हमें फिर दिखता है. वी सी द होल ऑफ द मून एज ब्लैक. कंप्लीट ब्लैक मून. सी ऐसा मून दिखता है. See, we see a complete black moon like this, something like this. ऐसा सोलर इक्लिप्स में होता है. जब मून पूरी लाइट सन की ब्लॉक कर देता है तो हमें वो अर्थ से क्या दिखेगा? हम तो अर्थ से देख रहे हैं ना मून को. तो अर्थ Yes. से वो लाइट ही नहीं पास हो पा रही है तो वो कोई उसका वो नहीं दिखेगा. द मून विल बी अपीयरिंग ब्लैक टू अस फ्रॉम द अर्थ. तो लूनर और सोलर इक्लिप्स क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का अच्छे से क्लियर हुआ? Yes, ma'am. आगे के चैप्टर्स में ये आएगा एंड देन आई वांट टू यू बोथ टू एक्सप्लेन इट टू मी. आई वोंट एक्सप्लेन देन. ओके, नाउ मूविंग ऑन. व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? आई थिंक रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ओनली. या अर्थ मूवमेंट्स. अर्थ कैसे मूव होता है? हाउ डज अर्थ मूव? टेल मी. अर्थ दो तरीके से मूव होता है. अर्थ मूव इन टू वेज. व्हाट आर दोस टू Ma'am, वेज? can I tell? Yes, Sudiksha, answer. Ma'am, rotation and revolution. Is your name Sudiksha? Yes, Sudiksha, you tell. मैम जस्ट लाइक ये एक अर्थ है. ये राइट साइड पे मूव हो गया एंड लेफ्ट साइड पे और ये सर्कुलर शेप में भी घूमती है. कैसे बेटा? फिर से explain it to me. I didn't see you. मैम जस्ट लाइक ये एक अर्थ है.
ये ऐसे 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 शेप में घूमेगी उसको और बोलते ये हैं एक सर्कुलर रोटेशन। शेप में भी हाँ घूमती है। हाँ, तो वो अपने एक्सिस पे वो होता है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन। ये सृष्टि बेटा आप क्या What? बता रहे थे? नाउ टेल। There are two ways on how Earth moves. That is, yes, Srishti. That is, the two ways are rotation and revolution. yes, rotation. So दीक्षा ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। सपोजिंगली दिस इज द अर्थ, ये जो है ये अर्थ है, ठीक है? या फिर चलो मैं मेरा माइक को अर्थ बना देती हूँ। दिस इज द अर्थ। सो द अर्थ मूव्स ऐसे 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 भी मूव होता है और ऐसे ऐसे भी मूव होता है, ठीक है? How does the earth move? Earth move around its own axis, तो उसे बोलते हैं रोटेशन। तो अर्थ का फाइनल मूवमेंट कैसा हुआ? वो ऐसे भी मूव कर रहा है और वो ऐसे भी मूव कर रहा है, तो उसका फाइनल मूवमेंट क्या हुआ? ये हुआ, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे ऐसे करते हुए अपने में भी मूव हो रहा है। यस सृष्टि, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन ओवर हियर। लुक हियर, डोंट लुक इन योर बुक। So what is the final movement of the earth? The earth moves like this. ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है और ये रेवोल्यूशन भी कर रहा है। So this is how the earth moves. Clear? ये जो मूव हो रहा है ऐसे ऐसे वाले को रोटेशन कहेंगे और ऐसे ऐसे वाले को रेवोल्यूशन कहेंगे। Revolution. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? सृष्टि समझ आ गया बेटा? Yes, ma'am. ओके। तो रोटेशन अर्थ जो करता है, इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये अपने खुद के एक्सिस पे अर्थ, दिस इज द अर्थ। अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ऐसे होता है अर्थ, ठीक है? टिल्टेड होता है, tilted on about 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री tilted होता है। ये शायद आपके बुक में गिवन है, सो प्लीज लर्न। 23.5 डिग्री ऐसे टिल्टेड होता है एंड देन इट मूव्स ऐसे ऐसे करके, एंड फिर ये अपने खुद के एक्सिस पे इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। Ma'am, which side? यस बेटा, Ma'am, which side it is tilted? it is tilted on about 23.5 डिग्री। तो Ma'am, which side? सी, ऐसे Right or left? नहीं नहीं, लिसन टू मी, ऐसे नहीं आप समझोगे। ये 360 का सर्कल होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 180 वाला हाफ सेमी सर्कल होता है, ठीक है? ये 180 डिग्री होता है, ठीक है? अब ये हम इसको और हाफ में डिवाइड करेंगे, ये 90 होता है। तो इधर से 1 to 90 होता है और इधर से 90 to 180 होता है। तो 23 समथिंग अराउंड यहाँ आएगा, विच मीन्स वो किस साइड पे टिल्ट हुआ? विच मीन्स वो किस साइड पे टिल्ट हुआ? टेल मी। Ma'am, right side. राइट साइड? हाउ हैव यू इमेजिन्ड? Ma'am, that you have drawn. Yeah. देखो, हम ये नहीं कह सकते बेटा कि वो अपने राइट साइड पे टिल्टेड होता है या लेफ्ट साइड पे टिल्टेड होता है। वी कैन नॉट से कि या अर्थ कभी लेफ्ट पे टिल्ट होता है कभी राइट पे टिल्ट होता है। बस हम इतना बोल सकते हैं कि वो इतना टिल्ट होता है। अब अगर टेल मी, मेरा हैंड जो है इतना टिल्ट है, ठीक है? इट इज दिस टिल्ट, आई एम रोटेटिंग दिस हैंड, ये टिल्ट है, मैं रोटेट कर रही हूं तो ये तो लेफ्ट में भी टिल्ट हुआ और जब मैं रोटेट करके राइट में गई तो वहां पर भी तो टिल्ट हो गया ना। So we cannot say the earth is tilted on its left or on Yes, its ma'am, I right understand. because it is rotating, but हम इतना कह सकते हैं it is
tilted on about 23.5 डिग्रीज, 23.5 डिग्रीज वो tilted होता है, इतना सा ऐसे होता है। क्लियर हो गया? यस मैम। ओके। एंड रोटेशन में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, दैट इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। मैम एंड व्हाट इज द एक्सिस? एक्सिस का मीनिंग, ओके देखो बेटा, सी हाउ डू आई एक्सप्लेन यू एक्सिस का मीनिंग। एक्सिस को आप बोल सकते हो एक इमेजिनरी लाइन अर्थ की होती है, एक अर्थ की एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अराउंड वो मूव करता है, वो अपनी एक्सिस, हम लोगों ने एक अर्थ की इमेजिनरी लाइन बना दी है ऐसे समथिंग, और उसी के अराउंड वो मूव करता है। सो एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ, on which the earth moves, not around, on which the earth moves। तो वो एक इमेजिनरी लाइन है, वो कुछ ऐसा अर्थ का कोई एक्सेस नहीं है, ऐसा कोई एक्सेस बना नहीं हुआ है, कभी अर्थ में ऐसे कोई एक्सेस बना नहीं हुआ है, ये हमने एक इमेजिनरी लाइन वो करी है। जैसे कि हम अगर इफ आई एम मूविंग, मैं ऐसे से रोटेट कर रही हूँ तो मैं अपने एक फिक्स्ड एरिया में मूव कर रही हूँ ना, वैसे ही अर्थ भी एक अपने फिक्स्ड एरिया में मूव करता था, तो हमने एक इमेजिनरी लाइन बना दी एंड वी कॉल्ड इट एज एक्सिस। सो अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे मूव करता है। क्लियर? ओके मैम। Yes, ma'am. ओके, देन मूविंग ऑन टू रोटेशन, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, टेल मी क्या होती है। रोटेशन इज अ डेली साइकिल। डेली साइकिल कैसे हुई पता है? ये 24 आवर्स, ये it causes day and night, rotation causes day and night। what is the time? we have 3 more minutes। okay, मैं जल्दी से रोटेशन रेवोल्यूशन समझा देती हूँ। रोटेशन causes day and night, वो 24 आवर्स में ऐसे ऐसे मूव करते करते अराउंड द सन मूव करता है, तो वो जिस जैसे जैसे सन के अराउंड मूव करता जाता है वैसे वैसे दिन और रात बदलते जाते हैं। सो इट मूव्स इन अ 24 आवर्स टू कम, इट टेक्स Earth to it takes 24 hours for the Earth to complete one rotation and it causes day and night। Earth को कितना टाइम लगता है? 24 आवर लगता है एक रोटेशन करने में। लाइक 24 आवर में वो पूरा ऐसे टर्न होता है। मैंने यहां से शुरू किया, मेरा तो हैंड ही इतना नहीं टर्न हो पाएगा। सी, यहां से शुरू किया एंड यहां से वापस यहाँ आने पे अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एंड दैट इज व्हाई इट कॉजेज डे एंड नाइट। हाउ मेनी आवर्स डू वी हैव इन द होल डे? 24. 24 आवर्स। 24 आवर्स। तो रोटेशन से अब क्या क्लियर हो गया? इट टेक्स अर्थ, इट टेक्स 24 hours to complete one rotation। एंड व्हाट एल्स? एक और बात मैंने बताई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, टेल मी। Rotation causes day and night. वेरी गुड, वेरी गुड, इट कॉजेज डे एंड नाइट। तो ये क्या हो गया? डेली साइकिल हो गई, रोटेशन की डेली साइकिल हो गई है। अब रेवोल्यूशन के बारे में वी विल टॉक अबाउट रेवोल्यूशन टुमारो, और फिर हम लोगों का चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। आई थिंक ओनली रेवोल्यूशन विल बी लेफ्ट एंड उसके बाद क्या बचा है, लेट मी सी। मैम मतलब अर्थ 24 आवर्स में एक ही राउंड लेता है? एक राउंड ऐसे नहीं, एक राउंड ऐसे रोटेट करता यस है। मैम। हाँ, 24 आवर्स में। Yes, after rotation and revolution we will be concluding this chapter। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद एंड देन वी विल, जल्दी से मैं रेवोल्यूशन कल एक्सप्लेन करके एंड फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा दूंगी। ओके, ओके मैम। we will study English today। tell me one chapter tomorrow, sorry, tell me one chapter which you all want to study।
Of which मैम subject? मैम 3 days to see unit 1. बेटा इंग्लिश ग्रामर ओनली।